हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि @JRF गुरु पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जैसा कि रिजल्ट आ चुका है और वेरियस लर्नर्स ने JRF और नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू. Many congratulations on your success, and in future ahead you should have such kind of success. So many opportunities are waiting for you. Just utilize your JRF and the net exams timely. So what happened na, once we qualify our exam, once we qualify the JRF exam, once we qualify the net exam, the next question जो हमारे mind में आता है, that is about the career. Real journey of the career is going to be start from here, correct? So अब आपके mind में है कि I have achieved JRF, now what I can do, I have achieved net and now what I can do. So these are the question जो आपके mind में भी आ रहे हैं और मुझसे भी पूछे जा रहे हैं continuously. Students are, learners are asking about the question how they can utilize their JRF, how they can utilize their net score card, correct? सो लेट्स स्टार्ट. एक छोटा सा डिस्कशन, एक छोटा सा गाइडेंस मैं अपनी तरफ से आपको देने की कोशिश करूंगी. आई होप दिस गाइडेंस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर career as well. So all the very best for your career and congratulations once again. So here are some options we have. The first option, definitely we start with the assistant professor. Assistant professor, like you know that assistant professor who is going to qualify the JRF, who is going to qualify the assistant professor examination, both of you can go and join any university or any college as an assistant professor. You can join for the government university, आप किसी भी private university को भी join कर सकते हैं, colleges भी join कर सकते हैं, and your basic salary is going to be started from at least from 60,000 to up to 2 lakhs. It depends on the university. Like I'm not going to give you बहुत सारे dreams, but हाँ, it depends on the university. आप किस university को join कर रहे हो, so it vary. So first career that you can start after the JRF or you can start after the net exam definitely is an assistant professor job, correct? So उसके लिए आपको, यदि आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई करना चाहते हैं, you can have to be updated with the नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम निकालती रहती है. इट कुड बी द स्टेट गवर्नमेंट, इट कुड बी द योर नेशनल गवर्नमेंट और नेशनल लेवल कॉलेजेस आर देयर. सो उनका वैकेंसी आपको टाइम टू टाइम देखना होगा. एज यू आर JRF क्वालिफाइड, एज यू आर नेट क्वालिफाइड, नाउ यू डोंट हैव टू गिव एनी काइंड ऑफ द रिटर्न एग्जाम. आप डायरेक्टली किसके लिए अपियर हो सकते हैं, आप डायरेक्टली इंटरव्यू में अपियर होंगे. एंड डेफिनेटली द वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट जो JRF क्वालिफाइड है या फिर नेट क्वालिफाइड है. So this is about the assistant professor. Now the next option is research associate or research assistant. Okay, this is different from PhD. Actually what happened, many organization, like you can talk about the IT industry. In IT industry there are the many IT company, many organization that do the research work into their organization. Over that you can apply. ठीक है, मतलब आप IBM में अप्लाई कर सकते हो, आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो आपकी है TCS वगैरह, या आप अपने फील्ड की, मैं IT की बात कर रही हूँ, आप किसी भी अपने फील्ड में जो भी कंपनीज हैं, और डेफिनेटली आप कॉमर्स की बात करेंगे, आप मेडिकल की बात करेंगे, सो फॉर एवरी फील्ड दे आर डूइंग सम रिसर्च वर्क. हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क कर रहा है. सो यू कैन कनेक्ट विद दैम एज रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च असिस्टेंट. हियर अगेन यू विल गेट अ गुड पैकेज, correct? So it is also a good option to start your career. Third one is PhD. Yes, definitely we have done the JRF for the PhD, so we can go for the PhD from IITs, we can do the PhD from NITs, and we can also do the PhD from the Central University. So अब आपके ऑप्शन ओपन हो गए हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि जब आपका JRF ही होगा तभी आपको स्टाइपेंड मिलता है. नो, मैनी यूनिवर्सिटी ऑल्सो गिव द स्टाइपेंड टू द लर्नर्स जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है. तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, डिफरेंट प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी लेवल की भी ग्रांट्स होती हैं एंड
JRF लेवल की भी ग्रांट्स अवेलेबल है। सो गो फॉर इट। अगेन क्या करना होगा, आपको सर्च करना होगा कि भाई कहाँ PhD वैकेंसी है, वेयर यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू बी रेडी विद योर रिसर्च प्रपोजल, यू हैव टू बी रेडी विद योर इंटरव्यू। रिटन का आप टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको ये दो चीजें लेकर चलना है, रिसर्च प्रपोजल एंड द इंटरव्यू। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड ऑप्शन भी है। थर्ड वन इज लाइक गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, एनालिसिस गवर्नमेंट जॉब, या फिर हमारा ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट जॉब। तो बहुत सारे PSUs हैं, आप लोगों ने सुना होगा नवरत्न कंपनियां होती हैं। तो ये जो PSUs है, पब्लिक सेक्टर में जो आपके इंस्टीट्यूट हैं, ये भी हमारे JRF और नेट कैंडिडेट को एज एन एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं। so you can also go for this। again same process होगा, you have to check the government website जो government job के alerts देती है, और वहाँ आपको apply करना होगा and you have to just give the interview। थर्ड इज entrepreneurship। आप अपना अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वेयर यू कैन गिव द रिसर्च आइडिया टू द अदर्स, वेयर यू गिव द रिसर्च काउंसलिंग टू द अदर लर्नर्स, and like you can give a guidance or how they can qualify the JRF exam, how they can qualify the NET exam। so this is what you can start your business and can move ahead in this। and the sixth one that I am doing, so you can also do online coaching, so online guidance to the student through the कोचिंग। यहाँ दोनों चीजों को अलग क्यों रखा, क्योंकि भाई एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक दैट कि आप एक कंप्लीट प्योर बिजनेस कर रहे हो, बट इन ऑनलाइन कोचिंग यू आर गोइंग टू शेयर योर नॉलेज विद अदर्स। करेक्ट, सो अगेन यहाँ भी बिजनेस होगा, बट यू आर गोइंग टू शेयर द knowledge। correct, so knowledge in the terms of how they can score, how they can क्रैक डिफरेंट एग्जाम। JRF हो सकता है, डिफरेंट KBS एग्जाम हो सकते हैं, या आपके फील्ड से रिलेटेड, आपके नॉलेज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आप कोचिंग ओपन कर सकते हो। सो दीज आर द सम ऑप्शन टू ऑल द कैंडिडेट। ठीक है, ऑल दोज कैंडिडेट दोज हु हैव क्वालिफाइड द असिस्टेंट प्रोफेसर और द JRF एग्जाम। सो माय सजेशन कि भाई पहले तो प्रोफेसर बनो या रिसर्च एसोसिएट बनो, PhD करो, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जा सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप ऑनलाइन कोचिंग इनिशियली बहुत मेहनत मांगता है, आपको एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करना होगा, सो दैट यू कैन कीप इन योर माइंड फॉर द फ्यूचर एज वेल। आप फ्यूचर में भी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। यदि हेल्पफुल है सो प्लीज like the session, share with your friends, and do comment into the comment box। Thank you very much, and all the very best।